میں پوچھوں گا آپ سے خدا کیسے بنا؟ کیوں نہیں پوچھوں گا؟ کیسے بنا؟ ایسا ممکن ہے کہ جاوید صاحب مرنے سے پہلے جہنم کا راستہ چھوڑ کر جنت کا راستہ اختیار کر لیں اور جنت میں شفاف بدن حوروں کو اپنی شاعری اور فلمی نغمے سناتے رہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مولانا شمائل ندوی صاحب مرنے سے پہلے معاذ اللہ جنت کا راستہ چھوڑ کر جہنم کے راستے پر چل پڑیں اور جہنم میں ساری زندگی جاوید صاحب کو کوستے رہیں۔ انسائیڈ اسلام چینل میں آپ کا خیر مقدم سواگتم اور ویلکم ہے۔ مفتی شمائل ندوی کی فری ول پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک ہلکی سی روشنی ڈالی ہے۔ میرے کچھ احباب کا مطالبہ ہے کہ اس پر مزید روشنی ڈالی جائے تاکہ مفتی جی کے اسلامی فریب کا پردہ فاش ہو۔ اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم اختصار کے ساتھ اور قرآن و حدیث کے مطابق مفتی شمائل ندوی کے عربی اللہ کی طرف سے انسانوں کو دی گئی فری ول پر روشنی ڈالیں گے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے، ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور ہر انسان کا الگ الگ انداز میں ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی ریپس ریپ کر رہا ہے تو اس کا گاڈ کا قصور نہیں ہے، وہ اپنے فری ول کا غلط استعمال کر رہا ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے اور اسی کے لیے جہنم بنائی گئی ہے۔ خدا نے فری ول کا نظام بنایا ہے اور لہٰذا اگر اس دنیا میں کسی کو تکلیف آ رہی ہے اور گاڈ اس کو نہیں روک رہا ہے، وہ اس لیے نہیں روک رہا ہے چونکہ انسانوں کو فری ول دیا گیا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ اور یہ آپ 3 برس کے بچے کو بارود سے اڑا کے ٹیسٹ لے رہے ہیں۔ میں اپنی فری ول کے ناطے، اپنے ہیومن وزڈم کے ناطے گاجا میں ہو رہی اتیاچار کا وروध کرتا ہوں۔ بالکل کرنا چاہیے۔ آپ کے حساب سے میں گاڈ کی وزڈم کا وروध کر رہا ہوں؟ بالکل نہیں، وہاں جو ہو رہا ہے گاڈ کی بالکل بھی نہیں۔ نے تو بتایا تھا انجیکشن لگانے سے بچے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ انجیکشن لگا۔ مفتی شمائل ندوی نے ڈیبیٹ میں فری ول سے متعلق 3 بڑے دعوے کیے ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب کا ٹیسٹ لے رہا ہے۔ انسان کو فری ول یعنی اختیار کی آزادی دی گئی ہے اور مرنے کے بعد اللہ انسانوں کو ان کے اچھے اور برے کاموں کے مطابق جزا و سزا دے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا مفتی صاحب کہ اللہ نے انسانوں کو فری ول دی ہے یا نہیں۔ یہ سورہ بقرہ یعنی گائے کی سورہ کی آیت نمبر 6 اور 7 ہے، جنہیں تقریباً ہر مسلمان جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ ترجمہ فتح محمد جالندھری۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جب اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تاکہ وہ ایمان نہ لائے، تو پھر فری ول اور پاور ٹو چوائس اور اختیار کی آزادی کہاں رہی؟ اگلی آیت دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ چیپٹر 16 سورہ نحل آیت نمبر 93۔ اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق یہاں آیت میں امتن واحدہ یعنی ایک جماعت یا ایک گروہ کا مطلب مسلم جماعت یا مسلم امہ ہے۔ تو یہاں گمراہی و ہدایت کا دار و مدار انسان کے اختیار و مرضی اور فری ول کے بجائے اللہ کے اختیار و مرضی پر ہے۔ یہ آیت دیکھیے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا۔ چیپٹر 10 سورہ یونس آیت 99۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے۔ ترجمہ فتح محمد جالندھری۔ کیا اس آیت کے بعد مفتی صاحب کی فری ول پر مزید کچھ کہنے کو باقی بچتا ہے؟ اس آیت نے تو مفتی صاحب کی فری ول کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہے۔ اب ذرا اسی چیپٹر 10 یونس کی اگلی آیت دیکھیے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ چیپٹر 10 سورہ یونس آیت 100۔ مولانا مودودی نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے، کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ تفہیم القرآن سید ابو العلا مودودی۔ اب ذرا مولانا مودودی کی ترجمہ نگاری دیکھیے کہ آیت میں لفظ نفس کا ترجمہ انہوں نے متنفس کیا ہے، جو کہ نفس سے بھی زیادہ گاڑھی اور مشکل لفظ ہے۔ اردو میں لفظ نفس کو تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، جیسے قرآن ہی کی ایک مشہور آیت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسے لوگ جانتے ہیں، لیکن متنفس کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ خیر، اس آیت کا آسان ترجمہ مولانا وحید الدین نے کیا ہے، اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لا سکے۔
मौलाना वहीदुद्दीन खान। और ये फतह मोहम्मद जालंधरी का तर्जमा है। हालांकि किसी शख्स को कुदरत नहीं है कि खुदा के हुक्म के बगैर ईमान लाए। और मुफ्ती शमाइल और तमाम देवबंदियों और नदवियों के शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने इस आयत का तर्जमा ये किया है, और किसी से नहीं हो सकता कि ईमान लाए मगर अल्लाह के हुक्म से। और अब इस आयत का हिंदी तर्जमा देखिए। किसी प्राणी के लिए यह संभव नहीं है कि वह अल्लाह की अनुमति के बिना ईमान लाए। मौलाना अजीजुल हक उमरी। और ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का अंग्रेजी तर्जमा है। It is not possible for anyone that he believes except with the will of Allah. लो कर लो बात खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा आप लोगों ने, ये है मुफ्ती शमाइल नदवी के अल्लाह मियाँ की फ्री विल, जिसे उसने लोगों को अता की है कि अल्लाह ने तमाम इंसानों को ईमान लाने की फ्री विल भी दे रखी है, लेकिन इंसान अपनी इस फ्री विल को अल्लाह की इजाजत के बगैर इस्तेमाल भी नहीं कर सकता है। इस आयत ने तो मुफ्ती साहब की ख्याली फ्री विल की दुनिया ही हिला कर रख दी। और ये आयत मुफ्ती जी की फ्री विल के लिए किसी जलजला से कम नहीं है। वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, चैप्टर 37 सूरह साफ़ात आयत 96। हालांकि अल्लाह ही ने तुमको भी पैदा किया है और उन चीजों को भी जिन्हें तुम बनाते हो। तफ़हीम अल कुरान मौलाना मौदूदी। यहाँ मौलाना मौदूदी और उर्दू के तकरीबन तमाम तर्जमा करने वालों ने वमा तामलून का तर्जमा किया है और जो कुछ तुम बनाते हो, जबकि ये गलत तर्जमा है। सही तर्जमा है और जो कुछ तुम करते हो, यानी तुम्हारे आमाल को। इसका हिंदी तर्जमा सही है। हालांकि अल्लाह ही ने तुम्हें पैदा किया तथा उसे भी जो तुम करते हो। मौलाना अजीजुल हक उमरी। इसी तरह डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब का अंग्रेजी तर्जमा भी दुरुस्त है। When it is Allah who created you and whatever you do. डॉक्टर मुस्तफ़ा खत्ताब, द क्लियर कुरान। आयत का मतलब सूरज की तरह रोशन है कि इंसानों को और इंसानों के आमाल, कामकाज, सरगर्मियों और एक्शंस व एक्टिविटीज को पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। यानी इंसान और इंसान के आमाल सबको पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है और कोई नहीं। और अब ये अगली आयत देखिए, वमा तशाऊन इल्ला अयशा अल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, चैप्टर 76 सूरह इंसान आयत 30। और तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह ना चाहे, यकीनन अल्लाह बड़ा अलीम व हकीम है। तफ़हीम अल कुरान मौदूदी। और तुम नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। मौलाना वहीदुद्दीन खान। और तुम अल्लाह के चाहे बिना कुछ भी नहीं चाह सकते। मौलाना अजीजुल हक उमरी। एंड यू विल नॉट सो विश अनलेस अल्लाह सो विल्स। मुफ्ती तकी उस्मानी। तो इस आयत में तो अल्लाह ने इंसानों की चाहत, मर्जी और मशीयत पर ही पाबंदी लगा दी कि इंसानों के चाहने या चाहने से कुछ नहीं हो सकता है, वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। उर्दू के खुदाए सुखन मीर तकी मीर ने इसीलिए अल्लाह को मुखातब करते हुए शिकायत किया था, नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। अबस यानी फालतू का। और लोगों को मालूम नहीं कि मीर तकी मीर ने यह भी कहा है, मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उनने तो कशका खींचा, दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। कशका खींचा यानी माथे पर तिलक लगाया, दैर में बैठा यानी मंदिर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया यानी मीर ने कब का इस्लाम छोड़ दिया। तो नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हैं, हमको अबस बदनाम किया। ओके, तो इस मौजू पर मैंने अब तक कुरान मजिद से सिर्फ चंद ही आयतों को पेश किया है, वरना इस तरह की आयतें कुरान में बहुत हैं। कुरानी आयतों के बाद नमूने के तौर पर दो हदीसों को जान लेते हैं ताकि मौलाना शमाइल नदवी की ख्याली और फरेबी फ्री विल की हकीकत मजीद वाज़े हो जाए। सही मुस्लिम की हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु शैइन बेक़दर हत्तल अज्ज़ वल कैस। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज तकदीर से है, यहाँ तक के किसी काम को ना कर सकना और कर सकना भी। यानी मौलाना शमाइल के अल्लाह ने इंसान के तकदीर में यहाँ तक साफ साफ लिख दिया है कि वो इस दुनिया में कोई काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मतलब यह है कि हर इंसान इस दुनिया में आकर क्या करेगा ये तो लिखा ही है, साथ में ये भी लिख दिया है कि वो क्या नहीं कर पाएगा। इसी को इस हदीस में अल अज्ज़ वल कैस से बयान किया है।
यानी किसी काम को कर पाने की सलाहियत व इस्तिताअत यानी कैपेबिलिटी, और ना कर पाने की बेबसी, लाचारी और मजबूरी यानी इनकैपेबिलिटी। तो अल्लाह ने इंसान की सलाहियत व इस्तिताअत, इंसान की कुदरत, ताकत यानी कैपेबिलिटी, और इंसान की बेबसी, लाचारी, मजबूरी और अदम कुदरत यानी इनकैपेबिलिटी, इन सब को तकदीर में पहले से लिख के रख दिया है। आप इस हदीस को sunnah.com में भी देख सकते हैं। और ये अगली बहुत मशहूर हदीस है और मुत्तफक अलैह है। मुत्तफक अलैह यानी ये हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में है। व्यूवर्स की आसानी के लिए मैं इस हदीस को sunnah.com से कोट कर रहा हूँ ताकि हर कोई इसे चेक कर सके और समझ सके। यहाँ आप चैप्टर और हदीस नंबर वगैरह देख सकते हैं। इन्न अहदकुम युजमअ खल्क़हु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन, आखिर तक। मैं अरबी इबारत पढ़ने के बजाय तर्जमा पढ़ता हूँ। इस हदीस को अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबी ने बयान की है। इनका कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी पैदाइश की तैयारी तुम्हारी माँ के पेट में 40 दिनों तक नुतफा की सूरत में की जाती है। उतने ही दिनों तक फिर एक बस्ता खून के सूरत में, यानी यहाँ खून के नहीं खून की होगा, उतने ही दिनों तक फिर एक बस्ता खून की सूरत में इख्तियार किए रहता है, और फिर वो उतने ही दिनों तक एक मुद्गा गोश्त रहता है। उसके बाद अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है और उसे 4 बातों के लिखने का हुक्म देता है। उससे कहा जाता है, यानी अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता है कि उसके अमल, उसका रिज्क, उसकी मुद्दत जिंदगी और ये कि बद है या नेक लिख ले। अब उस नुतफा में रूह डाली जाती है। याद रख, एक शख्स जिंदगी भर नेक अमल करता रहता है और जब जन्नत और उसके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है तो उसकी तकदीर सामने आ जाती है और दोज़ख वालों के अमल शुरू कर देता है। यानी इस तरह वो आखिरकार दोज़खी बन जाता है। इसी तरह एक शख्स जिंदगी भर बुरे काम करता रहता है और जब दोज़ख और उसके दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है तो उसकी तकदीर गालिब आ जाती है और जन्नत वालों के काम शुरू कर देता है। यानी आखिरकार वो जन्नती बन जाता है। तो जैसा कि आप देख और पढ़ सकते हैं कि ये हदीस बहुत वाज़ेह और क्लियर अल्फाज में माँ के पेट में इंसानी पैदाइश के मराहिल को बयान करती है कि इंसान की पैदाइश का अमल माँ के पेट में शुरू होता है, जहाँ पहले 120 दिन के दौरान वो बच्चा नुतफा, फिर खून का लोथड़ा और फिर गोश्त की बोटी बनने से गुजरता है। उसके बाद अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता आता है जो उसमें रूह फूंकता है और उसके हक में 4 अहम फैसले लिख देता है। एक, वो दुनिया में क्या अमाल करेगा, आमल यानी एक्शंस, उसे जिंदगी में कितना रिस्क मिलेगा, रिस्क यानी रोटी कपड़ा और मकान वगैरह, उसकी उम्र कितनी होगी, और ये कि वो बदनसीब होगा या खुश नसीब। अब चूंकि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते ने उस बच्चे की तकदीर में ये 4 फैसले लिख चुके हैं, इसलिए उस बच्चे की जिंदगी इस लिखी हुई तकदीर के मुताबिक गुजरेगी। आगे इसी हकीकत को रसूलुल्लाह ने ताकीद के साथ बयान की है, तुम में से एक शख्स जन्नत वालों जैसा अमल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, मगर उस पर लिखी हुई तकदीर गालिब आ जाती है और वो जहन्नमियों वाले अमल करने लगता है और इस तरह वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है। और तुम में से एक शख्स जहन्नमियों वाले अमल करता रहता है यहाँ तक कि उसके और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला रह जाता है, मगर उस पर तकदीर गालिब आ जाती है और वो जन्नतियों वाले अमल करने लगता है और इस तरह वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। अब इस हदीस के बाद मौलाना शमाइल नदवी के अल्लाह की तरफ से दी गई फ्री विल और इख्तियार की आज़ादी पर मजीद कुछ कहने को बाकी नहीं बचता है। इस हदीस का मतलब बिल्कुल साफ और वाज़ेह है कि जावेद अख्तर और मौलाना शमाइल नदवी दोनों के हक में अल्लाह ने उसी वक्त लिख दिया है जबकि ये माँ के पेट में थे कि ये दोनों दुनिया में क्या अमाल अंजाम देंगे, इन दोनों की कितनी उम्र होगी, इन दोनों को दुनिया में कितनी रोजी रोटी मिलेगी और ये दोनों खुशनसीब होंगे या बदनसीब। तो जावेद साहब इस वक्त पक्का मुल्हिद और प्योर एथिस्ट हैं और इनको लाख समझाने के बावजूद ये अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए कैसे काटधार लहजे में बोलते हैं। मैं पूछूंगा आपसे खुदा कैसे बना, क्यों नहीं पूछूंगा, कैसे बना?
मतलब ये कि वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो लाख समझाने के बावजूद जावेद साहब अल्लाह को मानने के लिए तैयार नहीं है और यकीनन ये रास्ता जावेद साहब को जहन्नम की तरफ ले जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि मरने से पहले, जबकि जावेद साहब और जहन्नम के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला बाकी बचेगा, जावेद साहब अपनी लिखी हुई तकदीर के मुताबिक जहन्नमी रास्ता छोड़कर जन्नत वालों के रास्ते पर चल पड़ेंगे और इस तरह जावेद साहब जन्नत में जाकर 70 हूरों को अपनी शायरी और फिल्मी नगमे सुनाएंगे और उन हूरों को अपनी जिंदगी की कहानी भी सुनाएंगे कि सुनो सुनो, मैं पहले पक्का मुल्हिद था, लेकिन अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से आज मैं जन्नत में तुम्हारे साथ मजे ले रहा हूँ। दूसरी तरफ मौलाना शमाइल नदवी साहब, जो कि जावेद साहब से अल्लाह के वजूद को तस्लीम कराने के लिए तरह तरह की अकली दलीलें पेश कर चुके हैं और जो अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर रखी है, और यकीनन ये रास्ता मौलाना साहब को जन्नत की तरफ ले जा रहा है। लेकिन हो सकता है कि मरने से पहले, जबकि मौलाना शमाइल नदवी और जन्नत के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला बाकी बचेगा, तो मौलाना साहब के हक में अल्लाह की लिखी हुई तकदीर गालिब आ जाएगी और मौलाना शमाइल साहब जन्नती रास्ता छोड़कर जहन्नम वालों का रास्ता इख्तियार कर लेंगे और इस तरह आखिरकार मौलाना शमाइल साहब जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे, जहां जहन्नम के जल्लाद फरिश्ते हाथों में कोड़े और लाठी डंडे और पता नहीं क्या क्या लेकर मौलाना शमाइल नदवी की स्वागत के लिए तैयार खड़े होंगे। और जल्लाद फरिश्तों की खातिरदारी के बाद मौलाना शमाइल साहब हर दिन जावेद साहब को कोसते रहेंगे। क्या मौलाना शमाइल नदवी साहब या कोई भी देवबंदी, नदवी, बरेलवी या अहले हदीस आलिम व मुफ्ती इस हकीकत को झुटला सकते हैं? हिम्मत है तो झुटला कर दिखाना। खैर, तो आज की वीडियो में इंसानी इख्तियार और मर्जी पर ये चंद आयतें और हदीसें पेश की गईं, जिनसे वाज़ेह होता है कि डिबेट में मखमसे से निकलने और अपने लिए रास्ता निकालने के लिए मौलाना शमाइल नदवी ने फ्री विल का शोशा छोड़ा था। हालांकि कुरान और हदीस में इंसानी फ्री विल की कतई इजाजत और गुंजाइश नहीं है।